بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ماریا دماغی مریضہ نہیں تھی، اکثر نارمل رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ جاتی تو کسی نہ کسی کو کاٹنے دوڑتی تھی۔ ایسے وقت اس سے بچنے کی مختلف تدابیر کی گئی تھیں۔ وہ بچتے بھی تھے اور فوراً ڈاکٹروں کو طلب کر لیتے تھے۔ لندن کے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر صبح اور شام اس کے پاس آتے تھے، اس کا معائنہ کرتے تھے اور اس کے جسم میں زہر کی مقدار کم کرنے کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ سر تھامس جانسن کو مہیا کر دیتے۔ وہ بنگلہ ایک ہسپتال کی طرح تھا۔ ماریا کے زہر کو ختم کرنے کے لیے وہاں جدید ترین مشینیں اور آلات منگوا کر رکھے گئے تھے۔ وہ گورنس بھی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو ماریا کو نت نئے ڈیزائن کے لباس پہننے اور طرح طرح سے میک اپ کرنے کا ہنر سکھاتی تھی۔ اسے اونچی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سمجھایا کرتی تھی۔ کیونکہ وہ بچپن سے افریقہ میں پرورش پاتی رہی تھی، اس نے دنیا کی سائنسی ترقی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، ٹرانسمیٹر وغیرہ کے متعلق سمجھایا جاتا تھا۔ سر تھامس جانسن کی پوری کوشش یہی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ تعلیم حاصل کر لے، سوسائٹی کے آداب سیکھ لے اور اس طرح زندگی گزارے کہ کوئی اسے افریقہ کی وحشی لڑکی نہ سمجھے۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی۔ ماریا کے بعد اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ساری توجہ اسی پر دے رہے تھے۔ ماں باپ جو سکھانا چاہتے تھے وہ بڑی حد تک سیکھ رہی تھی، لیکن ایک بات پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ کسی صورت بھی وہ پارس کو نہیں بھولتی تھی۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، جو بات ایک بار سمجھائی جاتی اسے کبھی بھولتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو کچھ پڑھایا جاتا تھا اور جو طور طریقے سکھائے جاتے تھے وہ انہیں یاد رکھتی تھی۔ پارس اس کی جوانی کا پہلا طور طریقہ تھا، پھر بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ باپ اسے سمجھاتا تھا، بیٹی غصے میں نہ آیا کرو، ہمیشہ ٹھنڈا مزاج رکھو۔ ماریا کہتی تھی، میں تو بالکل نارمل رہتی ہوں، لیکن غصہ آپ ہی لوگ دلاتے ہیں۔ بھلا ہم کیسے غصہ دلاتے ہیں؟ آپ مجھے پارس کے پاس جانے کیوں نہیں دیتے؟ اصل بات یہ ہے کہ پارس بہت ہی مہذب، بہت ہی تعلیم یافتہ جوان ہے اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم تمہیں اس کے شایان شان بنا رہے ہیں۔ جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گی تو تمہیں اس کے پاس جانے کی اجازت دے دیں گے۔ مجھے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسے پڑھتی ہوں، جو سکھایا جاتا ہے سیکھتی ہوں، اور جو سمجھایا جاتا ہے وہ سمجھتی ہوں۔ ہر کام کرتی آ رہی ہوں۔ پھر وہ وقت کب آئے گا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پارس کے پاس پہنچائیے یا پارس کو یہاں بلائیے۔ ڈینیل خاموشی سے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ سر تھامس جانسن کے دماغ سے خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا ماریا کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بے چینی سی محسوس کرنے لگی، ایک ہاتھ سے سر تھام کر بولی، میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی ہوں، جیسے میرے آس پاس یا میرے اندر کوئی خطرہ جنم لے رہا ہو۔ باپ نے فوراً ہی پیچھے ہٹ کر کہا، دیکھو بیٹی، غصے میں نہ آنا، تم خطرناک ہوتی ہو تو تمہارے ماں باپ بھی تم سے خوف کھانے لگتے ہیں، پلیز خود کو نارمل رکھو۔ ڈیڈی، میں غصے میں نہیں ہوں، میں اپنے دماغ میں کوئی بوجھ محسوس کر رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر میں کوئی شیطان گھس آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ طریقہ نہیں جانتی تھی کہ سانس روکنے سے وہ لہریں دماغ سے نکل جائیں گی۔ سر تھامس جانسن نے کہا، اگر تم دماغ کے اندر کچھ محسوس کر رہی ہو تو شاید فرہاد صاحب آئے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں، مسٹر فرہاد، کیا آپ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ڈینیل خاموش تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے، کیا فرہاد بن کر بولنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر کے خوف نے سمجھایا، ایک ڈمی فرہاد بننے والے کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اس کی ایک آنکھ گئی، ایک ہاتھ گیا اور اب ایک ٹانگ جانے والی ہے۔ اگر میں فرہاد بن کر بولوں گا اور یہ کبھی راز کھل گیا تو وہ باپ بیٹے مجھے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماریں گے۔ ادھر ڈینیل سوچ رہا تھا، ادھر سر تھامس جانسن کہہ رہا تھا، بیٹی جب تم پیرس میں تھیں تو میں نے فرہاد صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا، ان کے فیملی ممبر سے بھی ملتا رہا ہوں، پھر ٹیلی پیتھی سے متعلق اچھی خاصی کتابیں پڑھی ہیں۔ کہتے ہیں اگر دماغ میں کوئی آئے اور اس کا آنا ناگوار گزرے تو سانس روک لیا جائے،
इस तरह ख्याल ख्वानी की लहरें वापस चली जाती हैं। डैनियल ने परेशान होकर सोचा, अगर मारिया ने सांस रोक ली तो क्या होगा? मैं उसके दिमाग में नहीं रह सकूंगा, उसे ट्रैप करके डॉन मॉरिस तक नहीं पहुंचा सकूंगा। अभी वो मारिया के दिमाग में बैठा सोच ही रहा था कि अचानक दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उधर मारिया ने सांस रोक ली थी, उसकी ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गई थीं। उसने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, मैं अक्सर ऐसे वक्त हाजिर दिमागी से काम नहीं ले सकता। दरअसल दिमाग काम ही नहीं करता। अब इस नाकामी के बाद अक्ल आ रही है। मैं फरहाद साहब की आवाज़ और लबो लहजे में बोलता तो मुझे डर किस बात का था? फ़र्ज़ किया उस वक्त फरहाद पहुंच जाता तो वो कभी मालूम ना कर सकता कि डैनियल उसके लहजे में बोल रहा है, और ना ही वो मेरे दिमाग में आ सकता था, क्योंकि मैं अपना लबो लहजा मारिया को और उसके बाप को ना सुनाता। फिर उसने आंखें बंद की, ख्याल ख्वानी करता हुआ सर थॉमस जॉनसन के दिमाग में पहुंचा। फिर कहा, हेलो, मैं फरहाद बोल रहा हूं। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया, खुश होकर बोला, जनाब फरहाद साहब, क्या आप आए हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी बेटी के दिमाग में आया था। तुम्हें यह मशवरा नहीं देना चाहिए था कि वो सांस रोक ले। मेरी बेटी अपने दिमाग में बोझ महसूस कर रही थी। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैंने उसे यह मशवरा दे दिया। दरअसल मैं खामोश था और उसके अंदर रहकर उसकी दिमागी कैफियत मालूम कर रहा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? डॉक्टर बाहर से मुआयना करके इलाज करते हैं, आप अंदर पहुंचकर सारी कैफियत मालूम कर सकते हैं। मैं अभी मारिया को समझाता हूं, आइंदा ये सांस नहीं रोकेगी। फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगा। वो बोली, अगर पारस के डैडी मेरे दिमाग में आना चाहते हैं और मुझे पारस का पता बताना चाहते हैं या उसके पास पहुंचाना चाहते हैं तो मैं कभी सांस नहीं रोकूंगी। ये सुनते ही डैनियल उसके दिमाग में पहुंच गया। वो फिर बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसने फरहाद के लबो लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पारस का बाप हूं। मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे के लिए बहुत बेचैन हो। पहले तुम ये वादा करो, जो बात मुझसे कहोगी उसके लिए जुबान इस्तेमाल नहीं करोगी, सिर्फ सोच के जरिए बोलती रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैडी हमारी बातें सुन सकें। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हें पारस के पास नहीं जाने देंगे। वो सोच के जरिए बोली, मैं जुबान से कुछ नहीं बोलूंगी। क्या तुम मुझे पारस के पास पहुंचा सकते हो? वो तुमसे बहुत दूर है, इन दिनों इसराइल में है। अगर तुम अपने डैडी को राजी कर लो कि तफरीक की गर्ज से इसराइल जाना चाहती हो और वो तुम्हें वहां तक पहुंचा दें, तो इसके बाद पारस तक पहुंचाना मेरा काम है। डैडी को मालूम होगा कि मैं पारस से मिलने जा रही हूं तो वो मुझे कभी इसराइल जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मारिया, ज़रा जहानत से काम लो। डैडी को बताने की क्या ज़रूरत है? तुम सिर्फ तफरीक का इरादा जाहिर करो। क्या अभी डैडी से बोलूं? अभी ठहर जाओ, पहले मैं उनके पास जाकर तुम्हारी कैफियत बता रहा हूं। तुम ज़रा देर बाद उनसे बातें करना। उसने सर थॉमस जॉनसन से कहा, मैं उसके ख्यालात मुख्तसर तौर पर पढ़ चुका हूँ। वो दिमागी तौर पर नॉर्मल है। अगर वो घर की चार दीवारी से बाहर तफरीह के लिए निकलती रहेगी तो उसकी दिमाग की रही सही कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और खामखा पैदा होने वाला गुस्सा और झुंझलाहट भी जाती रहेगी। फिर उसने थोड़ी देर तक उल्टी सीधी बातें समझाने के बाद कहा, अच्छा सर थॉमस, इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ। फिर आपकी बेटी के पास आता जाता रहूँगा और आपको उसकी दिमागी कैफियत से आगाह करता रहूँगा। वो खामोश हो गया, लेकिन उसी के दिमाग में रहा। थोड़ी देर बाद मारिया ने कहा, डैडी, आपने वादा किया था जब मैं अच्छी तरह पढ़ने लिखने और तहजीब को समझने लगूंगी तो मुझे इस मुल्क से बाहर भेजेंगे। मैं दुनिया के जिस मुल्क में चाहूँ जाकर तफरीह कर सकती हूँ। हाँ, मैंने कहा था और तुम वाकई दिल लगाकर सीख रही हो। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसराइल जाना चाहती हूँ। बाप ने हैरानी से पूछा, इसराइल में क्या रखा है? वहाँ कोई सेहत अफजा मकाम नहीं है और तफरीह के लिए कोई काबिल ज़िक्र जगह नहीं है। आप भूल रहे हैं डैडी, मुझे जो पढ़ाया गया है मैं उसे कभी नहीं भूलती। मैंने अपनी टीचर से सुना भी है और पढ़ा भी है। वहाँ यरूशलेम में मुक़द्दस मकामात हैं जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं पहले उन मकामात पर जाऊंगी, अपने लिए और आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगी, फिर तफरीह की गर्ज से दूसरे ममालिक की तरफ जाऊंगी। बाप ने खुश होकर कहा, तुम बहुत ज़हीन हो। थोड़े से अरसे में तुमने बहुत कुछ सीख लिया है।
یہ تمہاری ذہانت ہے کہ تفریقی غرض سے ملک سے باہر جانا چاہتی ہو اور اس کی ابتدا دعاؤں سے کرنا چاہتی ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ بولو کب جاؤ گی؟ میں تو آج ہی جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، میں اور تمہاری ممی کل تمہارے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر باپ سے لپٹ گئی، ان کی پیشانی کو چومنا چاہتی تھی۔ باپ سہم کر ذرا پیچھے ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ڈیڈی میں وعدہ کرتی ہوں میرے دانت آپ کی پیشانی سے نہیں لگیں گے۔ باپ نے مسکرا کر کہا، بیٹی تم سے زہر بھی ملے تو قبول ہے، آخر ہماری جان ہو، جان لوگی تو کیا ہوا، بس یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آدمی موت سے ڈرتا ہے، اسی خوف سے میں ذرا جھجک گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے باپ کی پیشانی پر جھکی، پھر آہستگی سے چوم کر الگ ہو گئی۔ ڈینیل نے اس کے دماغ میں پہنچتے ہی کہا، دیکھو بے چینی ظاہر نہ کرنا، میں پھر آیا ہوں اور تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ کل تم یہاں سے اسرائیل کے لیے روانہ ہو جاؤ گی تو پرسوں تمہیں گائیڈ کروں گا اور پارس تک پہنچا دوں گا۔ اب جا رہا ہوں، ہم اسرائیل میں ملیں گے۔ سو فار۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں۔ سامنے میز پر شطرنج کی بساط اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ بساط کے عین وسط میں وہ شاہ کا مورا تھا جسے ڈینیل پارس سمجھتا تھا، اور بساط کے گوشے میں ایک پیادہ تھا جو اس کے خیال میں ماریا تھی۔ اس نے ماریا کو اس گوشے سے اٹھایا اور ساتھ ہی قریبی خانے میں پہنچاتے ہوئے کہا، میرے ناگ دیوتا، تمہیں بل سے نکالنے کے لیے تمہاری ناگن آ رہی ہے۔ فرزانہ بے چین تھی، نہ اسے نیند آتی تھی نہ بھوک لگتی تھی، ایک جگہ بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کبھی یہ سوچ کر بنگلے سے باہر جانا چاہتی تھی، پھر خیال آتا شاید پارس کا فون آ جائے۔ جب وہ فون کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو خیال آتا باہر نکل کر گھومنا چاہیے، شاید وہ کھلی فضا میں کہیں کسی دوسرے روپ میں مل جائے۔ اس کی ساس نے اس کے دماغ میں آ کر بتا دیا تھا پارس پھر گم ہو گیا ہے، اس نے جیری جیکب کو مار ڈالا ہے، اور ان ٹیلیپیتھی جاننے والے ساس سسر کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پارس تک پہنچ سکیں۔ اس کی ساس نے کہا، بیٹی تم اپنی رہائش گاہ میں رہو، وہ ضرور فون کرے گا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تم یہاں تنہا ہو، وہ تمہارے لیے فکرمند ہوگا، کسی نہ کسی طرح تمہاری خبر لے گا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، نہ اس کا فون آیا، نہ اس نے شکل دکھائی، نہ ہی کہیں سے ایسا اشارہ دیا کہ وہ اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاتی۔ آخر ساس نے مشورہ دیا، تم اپنی ملازمہ کو فون کے پاس بٹھا دو، اس سے کہو کمرے سے باہر نہ جائے، جب بھی پارس کا فون آئے تو اس کا پیغام نوٹ کرے اور اسے بتائے کہ تم اس کے لیے کتنی پریشان ہو اور اس سے کہیں بھی کسی بھی حال میں ملنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، ماما آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ملازمہ کو یہاں بٹھا کر جاتی ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ رسونتی کو یہ بات بری لگی، اس نے ناگواری سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ سے اور پاپا سے کتراتے ہیں۔ کترانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور آپ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی ٹیلیپیتھی کے مخالف ہیں۔ کیا ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی شکایت دور ہو جائے؟ آپ ٹیلیپیتھی کے ذریعے ان کی مدد نہ کریں، آپ ماں بیٹے کے درمیان یہ بات طے پا جائے کہ آپ پارس کے دماغ میں آیا کریں گی، صرف اس کی خیریت معلوم کریں گی اور ٹیلیپیتھی کے ذریعے اس کی مدد نہیں کریں گی۔ رسونتی نے خوش ہو کر کہا، تم بہت اچھی ہو، بہت ذہین ہو، تم نے بڑے کام کی بات کی ہے۔ واقعی جب وہ ہماری مدد قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کے سامنے ٹیلیپیتھی کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ ایک ماں اور چاہتی کیا ہے؟ صرف اپنے بیٹے کی خیریت اور سلامتی۔ میں اسی بنیاد پر اس کے دماغ میں آتی جاتی رہوں گی، اگر وہ مان لے۔ اس بار ملاقات ہوئی تو میں منا لوں گی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ یوں بے لگام ہو جائے گا تو میں بابا صاحب کے ادارے سے باہر نہ جانے دیتی۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے پیچھے پڑ گیا۔ جیری جیکب کو مار چکا ہے، باقی 3 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کی تلاش میں ہے۔ ہمیں ان کے متعلق معلوم ہے، ایک کا نام ڈینیل ہے، وہ ان دنوں اسرائیل میں ہے۔ اگر پارس اسے تلاش کرے گا تو وہ خواہ وقت ضائع کرے گا، اور یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ڈینیل اپنی یہودی قوم میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 اور ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں جن کے نام اور حلیے مجھے معلوم ہیں۔
तुम गौर से सुनो और अपनी याददाश्त में महफूज रखो, हो सके तो लिख लो। रसवंती बाकी 2 टेलीपैथी जानने वालों के नाम और हुलिये तफसील से बताने लगी। फिर उसने पूछा, तुमने नोट नहीं किया? मामा, आप बोल रही थीं और मैं सुन रही थी और मैंने सब कुछ ज़हन नशीन कर लिया है, लेकिन फिर एक बात खटक रही है। कौन सी बात? मैं पारस को उन टेलीपैथी जानने वालों की तफसील बताऊंगी तो वो ये पूछेगा कि मुझे कैसे मालूम हुआ। ये बताना होगा कि मामा ने बताया है और मामा ने यकीनन ख्याल ख्वानी के ज़रिए ये मालूमात हासिल की हैं। तुम उसे ये ना बताना कि ये मालूमात मेरे ज़रिए हासिल हुई हैं। फिर मैं क्या बताऊंगी? मुझे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? बैक वक्त तीनों टेलीपैथी जानने वालों का जिक्र ना करना। सिर्फ इतना कह देना कि तुमने एक शख्स को मशकूक हालत में देखा है। वो कहीं बैठा हुआ खला में तक रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद ही उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आपने मुझे बुलाया है? ये कहते ही वो चौंक गया। फिर कहने लगा, अरे मैं तो अपने बंगले में बैठा हुआ था, यहाँ कैसे पहुँच गया? उस शख्स ने उठते हुए कहा, तुम मेरी मुट्ठी में हो, सीधी तरह कार में जाकर बैठो। आने वाले ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये कहते ही वो फिर चुप हो गया, सर झुका लिया और उस शख्स के पीछे चलता हुआ उसकी कार में जाकर बैठ गया। रसवंती ये बातें फरजाना को समझा रही थी। फिर उसने कहा, तुम पारस से कहना तुम उस शख्स का ताकुब नहीं कर सकीं, लेकिन तुमने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है, लिहाजा तुम ये नंबर भी नोट कर लो। रसवंती ने उसे नंबर बताया। फरजाना ने पूछा, क्या वाकई उस टेलीपैथी जानने वाले शख्स की कार का यही नंबर है? जब वो टेलीपैथी सीखने के बाद कुछ अरसे तक यहाँ था तो यही कार इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं यह कार उसकी मलकियत है या नहीं, लेकिन पुराने रजिस्टर उलट पुलट कर देखने से यह नाम ज़रूर मिलेगा। फरजाना ने मुलाजमा को बुलाया। उस रिहाइशगाह में वही एक काबिल एतमाद मुलाजमा थी। उसने समझाया, तुम इसी कमरे में रहोगी। पारस साहब का फ़ोन आ सकता है, वो जो पैगाम दें उसे नोट कर लेना और यह ज़रूर कहना कि मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ, उनसे कहीं भी किसी सूरत में भी मिलना चाहती हूँ। वो उसे ज़रूरी हिदायत देकर रिहाइशगाह से बाहर आई, अपनी कार की स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करके एक लंबी ड्राइव के लिए निकल पड़ी। दुनिया में अब तक करोड़ों और अरबों मोहब्बत करने वाले गुजरे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे कोई ऐसा नुस्खा नहीं छोड़ा जिस पर अमल करते हुए बिछड़े हुए महबूब से मिला जा सके। वो सोचकर निकली थी, तमाम दिन ड्राइव करती रहेगी और रात को भी उस वक्त तक कार चलाती रहेगी जब तक उसे नींद ना आ जाए, और वो जानती थी उसे नींद नहीं आएगी। तलाश जारी है और जारी रहेगी। अचानक टेलीफोन से इशारा मौसूल हुआ। उसने कार एक किनारे रोकी और कॉर्डलेस रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से पारस की आवाज़ सुनाई दी। वही हूँ जिसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हो। वो खुशी से उछल पड़ी, चीखते हुए बोली, तुम कहाँ हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? मैंने तुम्हारे बंगले में फ़ोन किया था। मुलाजमा ने कहा तुम गाड़ी लेकर निकली हो, लिहाजा मैंने इसी नंबर पर तुम्हें रिंग किया है। ओह पारस, मैं मर जाऊंगी। तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। कितनी जल्दी आऊँ? अभी आ जाओ, मेरे रिसीवर रखने से पहले आ जाओ। ये मुमकिन नहीं है, थोड़ी सी देर लगेगी। कितनी देर लगेगी? यहाँ कुछ एजेंसियाँ हैं जहाँ किराए पर लड़कियाँ मिलती हैं जो अच्छे खासे मुआवजे पर भी नौजवान के साथ तफरीह करती हैं, सिनेमा, थिएटर और क्लबों में जाती हैं। इसी तरह किराए पर लड़के भी मिलते हैं जो अच्छे खासे मुआवजे पर जवान लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हैं। तुम ऐसी 2 एजेंसियों में जाओ और किसी खूबसूरत लड़के को तलाश करो जो तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर खामखा तसव्वुर आए तो मैं उस पर थूक दूंगी। पहले पूरी बात तो सुनो। उन 2 एजेंसियों में जाकर लड़कों को देखो, उन्हें ना पसंद करो। फिर तीसरी एजेंसी का पता नोट करो। उसका नाम है डैशिंग पियर्स। ये एजेंसी 32 एवेन्यू में 5वीं स्ट्रीट पर है। वहाँ जाओगी तो तुम्हारे सामने कुछ नौजवानों को पेश किया जाएगा। मैं उनके दरमियान रहूँगा। तुम मुझे मेरी उंगली की इस अंगूठी से पहचान सकती हो जो तुमने मुझे पहनाई थी। वो खुश होकर बोली, ओह पारस, कितना एडवेंचर है। कितनी रोमांटिक जुस्तजू के बाद तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बस मैं आ रही हूँ। उसने रिसीवर रख दिया, कार स्टार्ट की, फिर तूफानी रफ्तार से ड्राइव करती हुई एक एजेंसी तक पहुंच गई। एजेंसी वालों ने उसे खुशामदीद कहा।
उसके सामने कितने ही नौजवान लड़के पेश किए। वो उन्हें नापसंद करके दूसरी एजेंसी में पहुंची। वहां भी उसने लड़कों को नापसंद किया। फिर कार ड्राइव करती हुई डैशिंग पियर्स के दफ्तर पहुंच गई। वहां भी उसे खुशामदीद कहा गया, उसकी ज़रूरत पूछी गई। फिर उसके सामने चंद खूबरू जवान पेश किए गए। उनमें से एक जवान ने सर खुजाने के बहाने अपना हाथ उठाया तो फरजाना को अपनी अंगूठी नजर आ गई। उसने कहा, मुझे यह नौजवान पसंद है। वो दफ्तर में आकर उसकी फीस अदा करने लगी। पारस ने खूब सोच समझकर फरजाना से मिलने के लिए यह तरीक़ाकार इख्तियार किया था। न्यूयॉर्क में ऐसी एजेंसियां हैं जहां बेरोजगार नौजवान जो खूबरू होते हैं वो इन एजेंसियों में अपना नाम और पता लिखवा कर वहां के वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। दौलतमंद लड़कियां या बैरूनी ममालिक से या दूसरे शहरों से आने वाली लड़कियां जो तन्हा होती हैं अपनी तन्हाई दूर करने के लिए ऐसी एजेंसियों में आती हैं और उनका मुआवजा अदा करके अपनी पसंद का साथी ले जाती हैं। पारस ने ऐसी ही एक एजेंसी में अपना नाम और फर्जी पता लिखवाया था और वहां के वेटिंग रूम में बैठकर फरजाना का इंतजार कर रहा था। अब फरजाना उसे लेकर कार में आ गई थी। वहां बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसे घूर कर देखा। फिर पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से हासिल की है? क्या तुम वाकई मेरे पारस हो? उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस, तुम इतनी हसीन हो कि मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता था और इतनी मासूम हो कि धोखा नहीं देना चाहता। दरअसल तुम्हारा पारस मेरी गिरफ्त में आ गया था। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। फिर उसके सीने पर चाकू की नोक रखते हुए कहा, तुम्हारे पास जितना माल है वो निकालो वरना मैं जान से मार डालूंगा। उसने कहा, मेरे हाथ में यही एक हीरे की कीमती अंगूठी है। मैंने वो अंगूठी उसके हाथ से उतार ली। फिर उससे तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ सुना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तुम्हें ट्रैप कर सकता हूं, लिहाजा मैंने तुम्हारे पारस को एक जगह पर कैद कर दिया। अब तुम मुझे लाखों डॉलर दोगी और मेरे साथ कुछ रंगीन लम्हात गुजारोगी तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यू शट अप। मैं तुम्हें लाखों डॉलर दे सकती हूं लेकिन तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं अपने महबूब की इमानत हूं। मैं उसकी जान जाते हुए देखूंगी तो अपनी जान भी दे दूंगी। मैं जानता हूं मेरी फरजाना ऐसी ही है। ऐ खबरदार, मुझे मेरी फरजाना ना कहना। अरे मैं मजाक खत्म कर रहा हूं, गुस्सा थूक दो। मैं ही तुम्हारा पारस हूं। मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। अपना मेकअप उतारो। मैं मेकअप उतारूंगा तो दुश्मन घेर लेंगे। मेरी रिहाइश गाह में चलकर उतार सकते हो। तुम्हारी रिहाइश गाह दुश्मनों की नज़रों में है। क्या मैं वहां से जिंदा सलामत निकल सकूंगा? मैं कुछ नहीं जानती, पहले मुझे यकीन दिलवाओ। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा महबूब तुमसे बहुत प्यार करता है? क्या तुम्हारी प्राइवेट बातें किसी और को बता सकता है? हरगिज़ नहीं। वो अपने साए से भी ऐसी बात नहीं कह सकता जो तन्हाई में अपनी महबूबा से कहता है। तो फिर तवज्जो से सुनो। मैं वो सारी बातें कह रहा हूं जो हम दोनों तन्हाई में कह चुके हैं और कर चुके हैं। फिर वो करीब झुककर बहुत धीमी धीमी आवाज में कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर फरजाना का चेहरा हया से तमतमा रहा था। वो उसे परे धकेलते हुए और ढीले हाथों से मारते हुए बोली, यू चीट, धोखेबाज, तुम मुझे सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो संजीदगी से बोला, यह बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? आखिर दुश्मन तुम्हारा ताकुब कर रहे होंगे। वो देख रहे होंगे कि हम कार के अंदर जो बातें कर रहे हैं वो बाहर से सुनी नहीं जा सकती, और देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि तुम मुझे किराए पर हासिल करने के बाद मुझसे तारुफ हासिल कर रही हो और आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ हो रही हो। चलो अब गाड़ी आगे बढ़ा दो। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसी जगह है जहां हम इत्मीनान से बैठकर बातें कर सकें और कोई दुश्मन हमें पहचान ना सके? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। दुश्मन यकीनन तुम्हारा ताकुब कर रहे होंगे और वो मुझ पर भी नजर रखेंगे। तुमने जेरी जेकब को मार डाला है, इसके बाद और दुश्मन कहां से आएंगे? पारस ने उसे चौंक कर देखा, फिर कहा, ओह, तो मामा को मालूम हो चुका है कि मैंने जेरी जेकब को हलाक किया है। इसका मतलब है जब जेरी मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो मामा उसके दिमाग में मौजूद थीं। फरजाना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे जेरी जेकब की मौत के बारे में नहीं कहना चाहिए था, मगर बात जुबान से निकल गई थी। वो एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में आए। फरजाना ने पूछा, ये खुली जगह है, क्या तुम दुश्मनों के निशाने पर रहना चाहते हो? हम किसी चार दीवारी में जाएंगे तब भी दुश्मन निगरानी करते रहेंगे, फिर डरना कैसा? आओ बैठो, कुछ हल्का सा नाश्ता करेंगे,
कॉफ़ी पियेंगे, इसके बाद एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। फरजाना का दिल धक से रह गया। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। पारस ने कहा, मुझे यही कमज़ोरी पसंद नहीं है। इसी कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए तुम्हें बाबा साहब के इदारे में भेजा था, मगर मामा से क्या कहूँ, वो ममता की मारी हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ निकालने के लिए तुम्हें दोबारा यहाँ भेज दिया। फरजाना, औरत सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं होती, वो बोली, और मर्द सिर्फ रुलाने के लिए नहीं होते। जब तुम इदारे में रहकर मोम से पत्थर बन जाओगी, तब पता चलेगा कि औरत एक चट्टान होती है। वो हर आंधी के सामने सीना तान कर खड़ी होती है। आंधी गुजर जाती है मगर चट्टान नहीं गिरती। मैंने ऐसी कई चट्टानें देखी हैं जिनमें से एक का नाम सोनिया है। पता नहीं सोनिया मामा कैसी चट्टान है, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे चट्टान बनूंगी। मेरा दिल तो तुम्हारे लिए हर लम्हे धड़कता है। कोई सी बात हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही कमज़ोरी दूर करना चाहता हूँ। तुम बहुत जल्द बाबा साहब के इदारे में जाओगी। नहीं जाओगी तो समझ लो हम एक साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्या तुम मेरे बगैर रह जाओगे? इससे पहले कि तुम्हारी जैसी कमज़ोर लड़की को दुश्मन मेरी कमज़ोरी बनाए, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन वो कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा जिसे दुश्मन खेल सकें। क्या तुम मेरे साथ बाबा साहब के इदारे में नहीं चल सकते? मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ। ऐसी क्या मसरूफियत है? तुम यहाँ क्या चाहते हो? ट्रांसफॉर्मर मशीन ने 5 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं, जिनमें से 2 मारे गए हैं, 3 बाकी हैं। मैं इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फरजाना ने मेज पर दोनों हाथ टेक दिए, फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोली, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है जिस पर टेलीपैथी जानने वाले का शुबा होता है। पारस ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, तुमने कहाँ देख लिया? मुझे तफसील बताओ। मैं कल से तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। कल शाम को समंदर के साहिल पर थी। एक मल्टी कलर छतरी के नीचे आराम से लेटी हुई थी। मेरे करीब ही एक और मल्टी कलर की छतरी थी। उसके साए में एक शख्स लेटा हुआ आसमान की तरफ यूं तक रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो या ख्याल ख्वानी कर रहा हो। मैंने थोड़ी देर बाद देखा, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसके करीब आकर रुक गया। कहने लगा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? फिर वो दूसरे ही लम्हे लुढ़खड़ा सा गया। दोनों हाथों से सर थाम कर इधर उधर देखते हुए बोला, अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो अपनी रिहाइश गाह में था और ये तो समंदर का किनारा है। और तुम लॉरेंस डिकोजा? क्या ये वाकई तुम हो? वो शख्स जो मेरे करीब ही मल्टी कलर छतरी के नीचे लेटा हुआ था, उसका नाम मुझे मालूम हो गया। वो लॉरेंस डिकोजा था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं हूँ और मैंने ही तुम्हें ट्रैप किया है। अब तुम सीधी तरह मेरी कार में चलकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ अहम मामलात तय करने हैं। यह कहकर वो छतरी के नीचे से निकला, फिर दूर खड़ी हुई कार की तरफ जाने लगा। मैं भी उठ गई और एक लंबा चक्कर काट कर उसकी कार की तरफ आई। उस वक्त तक वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। वो गाड़ी स्टार्ट होकर आगे जा रही थी, लेकिन मैंने फौरन उसका नंबर नोट कर लिया। फरजाना नंबर बताने लगी। पारस ने वो नंबर नोट करने के बाद कहा, अच्छा तो उसका नाम लॉरेंस डिकोजा है। ऐसे ही एक नाम का जर्नल था जो ट्रांसफॉर्मर मशीन के चक्कर में मारा गया। वो जर्नल डिकोरा था, ये लॉरेंस डिकोजा है। पारस कह रहा था और उधर फरजाना सोच के जरिए रसवंती को मुखातिब कर रही थी। मामा, क्या आप मेरे दिमाग में मौजूद हैं? अगर हैं तो मुझे बताएं और देखें, आपका बेटा मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। हम फिर मिल गए हैं। मुझे कुछ मशवरे दीजिए ताकि उन पर अमल करते हुए आइंदा आपके बेटे को गुम ना होने दूं। वो कह रही थी, लेकिन रसवंती का जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसे यकीन हो गया कि मामा उस वक्त उसके दिमाग में मौजूद नहीं है। पारस ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? वो ख्यालात से चौंक गई, फिर बोली, कुछ नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे उसका नाम मालूम हो गया। इस तरह मैं 2 टेलीपैथी जानने वालों के नाम मालूम कर चुका हूँ, एक डैनी डैनियल और दूसरा लॉरेंस डिकोजा। फरजाना की आंखों में आंसू आने लगे। पारस ने हैरानी से कहा, ताज्जुब है, म्यूनिसिपैलिटी के नलके में भी इतना पानी नहीं आता। आखिर बात क्या है? वो पारस के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे गाइड करो, मेरी रहनुमाई करो। मैं नहीं जानती ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, शौहर की बात माननी चाहिए या सास की। तुम क्या कह रही हो?
میری بات کا جواب دو، شوہر اہم ہوتا ہے یا ساس؟ شوہر زیادہ اہم ہوتا ہے، اور جتنا وہ اہم ہوتا ہے اتنی ہی اہم اس کی ماں ہوتی ہے۔ مگر شوہر اور ساس کے خیالات مختلف ہوں اور دونوں کے احکامات مختلف ہوں تو لڑکی کو کس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے؟ تم مجھے الجھا رہی ہو، صاف صاف بات کرو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا، میں دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی بھی آزمائشی موقع پر تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی، میں اس سے پہلے مر جاؤں گی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔